on that. Okay. So thanks a lot, Kavar, and Asim is not here, but it's an honor to be invited. My name is Athir Imran. I'm CEO of Cybrid, which is a Laxon Group company. It's a Laxon Group is one of the largest business groups in Pakistan, which owns McDonald's, Colgate, Express, Stormfiber, Cybernet. So about 18 different companies. Five of them are public companies. It's one of the it's not the largest, but certainly the most diversified business group in Pakistan. And what I do, as a CEO of Cybrid, we are a company which is in five offices. We got an office in Peshawar as well. I'll be visiting that office tomorrow. Um, but we are about 1,500 people, five offices, six business units. Some of them are BPO business units, some of them are healthcare. We've got a very large technology team. And then we do a lot of new ventures as well. So we start up a few things that we think make sense to do in 3 to 5 years. They may not be related to what Cybrid is already doing. So I think that's another aspect of leadership when you start something totally new, and I'll talk about it. But my own background is technology. I've got a bachelor's and master's both in computer science. My bachelor's was from GIK Institute. My master's was from Purdue University in US. Did all my work in Pakistan. I've been with Laxon Group for about 7 years. In total, I have about a 21-year experience. Peshawar has always been a very, very nice and a home place to me because I've lived in Peshawar for 5 years. I did my metric from there as well, and got an office there as well now. I've got a lot of friends and family there, so it's like a second home to me. So I think I'm glad the Founder Institute has been a contributor to the NIC Peshawar. I was going through the sixth and seventh cohort के जो startups थी उनके मैं पढ़ भी रहा था, very interesting ideas. I'm so glad कि we're all coming up with very interesting ideas that make a lot of sense, especially in a post-COVID world. A lot of them are platforms, a lot of them are services जो already किसी और shape and form में हो रही हैं, but you bring them into a digital platform. So the topic that I was given was leadership, and in my opinion, it's a very very broad term. So we have to किसी तरह उसको कहते हैं ना एक थोड़ा सा उसका कोई सांचा कोई एक टेम्पलेट बनाने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. So let's start with differentiation between what I call leadership and management की differentiation. एंड देयर मेनी वेज टू इट बिकॉज होता ही है कि ये अल्फाज जो है हमारी ज़िंदगियों में जो इतने बोले जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इतने ओवरलोडेड हो जाते हैं कि हर एक इसका अपने जहन में मतलब बना लेता है. सो आई डोंट इंटेंड टू गिव अ डेफिनेशन, बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उसको डिफाइन कर लें एटलीस्ट मेरे जहन में क्या है. एंड लीडरशिप और मैनेजमेंट की जो डिफ्रेंसिएशन कैन बी a good way to set a context. So leadership fundamentally, so management is really, you're given certain things, you're defined very clearly what needs to be done. The vision is there, the direction is there, the execution has to be done. And when we talk about a manager, their fundamental responsibility is execution as per the defined direction and plan and vision. And the fundamental objective of management is excellent execution, right? जो काम जैसे करना है वैसे हो रहा है. When you talk about leadership, it is certainly a part of it is management, but it is fundamentally defining out के करना क्या है, चीज क्या करनी है, डायरेक्शन क्या है, विजन क्या है. And that for me is the biggest differentiation between leadership and management. आप लोगों ने जब अपनी स्टार्टअप्स फाउंड की और आपने कहा कि व्हाट वी शुड डू, you said कि I'm going to build a platform for washing services था, या I want to build a platform for gardening services मैं देख रहा था, so you had certain thoughts, whatever your thesis was कि इसमें एक gap है, एक ज़रूरत है, and I should do something on that and I will develop. So when you made that decision and when you left whatever you were doing or whatever you added on something alongside your work,
That is leadership. So you defined out a direction and a vision and a mission. And then obviously you know आपके co-founders and आपकी teams हैं जो बनती जाती हैं, then you start executing, and that's where the management of stuff comes in. But जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें भी लीडरशिप आती है. कई दफ़ा पे ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसमें really somebody has to take a leadership and define something on their own. But fundamentally, management is about executing what's already defined. And leadership is really defining out what needs to be done, setting a direction, and that happens on a regular basis. तो आपने ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जिस तरह शुरू में जो डिफाइन आउट किया है, कुछ लोगों को 6 महीने हो गए, कुछ ज़्यादा हो गया और कुछ को 6 महीने से भी कम हो. This process of startups is reinventing. You're always going to keep changing. आज आप जो स्टार्टअप के बारे में अपना कर रहे हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि साल पहले भी आप एग्जैक्टली इसी तरह सोच रहे थे, नहीं ऐसा नहीं था. एंड आई कैन अश्योर यू आफ्टर 6 months you will be thinking or doing things differently, because pivot करना पड़ता है. So लीडरशिप हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त आपको रीडिफाइन करना पड़ रहा होता है, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लेने पड़ रहे होते हैं, मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ रहे होते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा होता है. बहुत से लोग किसी जब स्टार्टअप जिस चीज़ से स्टार्ट होता है वो बिल्कुल फ़र्क होता है और जो आपने एंड कर रहे होते हैं वो फ़र्क होता है. कई दफ़ा मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि एक you think that you एक ट्री है जिसको आपने ग्रो करना है और आप समझते हैं कि आप बिल्कुल रूट से स्टार्ट करेंगे, उसकी फाउंडेशन बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करेगा, बिल्कुल जिस तरह एक नेचुरल प्रोसेस है. इस तरह कभी भी नहीं होता. वो स्टार्ट में आप कोई you're creating a branch, you're creating a leaf, फिर आप उसको टटोलते हैं, उससे करके आप किसी और सिरा को पकड़ते हैं, and ultimately you keep on changing. So leadership is fundamentally about direction, about vision, and then also not just an academic thought about that vision and that direction. It's also about implementing it. So a lot of time as a CEO of my company, what I have to be doing is ensuring कि मैंने जो direction दी है या जो मैंने goals दिए हैं या मैंने जो targets दिए हैं या मैंने जो direction दी है वो implement भी हो रही है. So the management यानी जिस team ने actual on ground implementation करनी है वो exactly उसी तरह से कर रही है जिस तरह से आई एम माई थॉट प्रोसेस आर. अच्छा, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये कि ये कोई हायरार्किकल नहीं है. सो यू नेवर थिंक एक लीडरशिप एक लेवल 1 है और मैनेजमेंट लेवल 2 है. आपको बहुत जगहों पे खासतौर पे नॉलेज वर्क और क्रिएटिव वर्क जिस तरह का आप कर रहे होते हैं, इट इज नॉट लाइक फैक्ट्री. सो फैक्ट्री इज डिफरेंट, इंडस्ट्रियल एज इज डिफरेंट. आपने कहा ये चीज़ बनानी है, आपने यू नो क्या कहते हैं फ्लोर मिल लगानी है, तो फ्लोर मिल एक ही तरीके से लगनी है. आपने उसका पैसा लिया, बनाया, लगा दिया, एंड देयर समबडी हु इज एग्जीक्यूटिंग इट. दिस इज क्रिएटिव वर्क. आपके प्लेटफॉर्म्स बिल्ड हो रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक चेंज हो रहा है. So a lot of time the people who are implementing, they have to be, you have to buy them into your vision, you have to convince them, you have to influence them. That is the difference in leadership between an industrial age setup and a knowledge economy setup. So leadership बहुत से लेवल पे ये भी है कि पहली चीज मैं कहता कि you have to have your core team, and for that matter startups के अंदर शुरू में सारे लोग core होते हैं. You have to have them buy in and understand where you're coming from. It's not about a hierarchical ये कह दिया और वो हो जाएगा. Lot of them आपके जो co-founders हैं, बहुत से लोग जिनको आप साथ लेके आए हैं, they know कि you are early stage, you are not stable. आप 6 महीने बाद होते हैं, नहीं होते. These are all realities. So everybody has taken a leap of faith with you. तो जब तक वो आपके विजन के साथ बाय इन नहीं करेंगे, एज अ लीडर आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे, आप आपकी स्टोरी, आपकी थॉट्स, जो आपके पूरा विजन है वो उसके साथ वो उसके साथ अलाइन नहीं होंगे, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब एज अ लीडर. नंबर 1. नंबर 2, एज अ लीडर लॉट ऑफ टाइम्स एज द कंपनीज आर ग्रोइंग, you have to a lot of time it is about integrating. So आपका फिर branding का काम भी start हो गया, technology development भी हो रही है, आप partnerships भी build कर रहे हैं, आपकी customer service भी हो रही है. हर चीज़ को हो सकता है अलग अलग managers हों जो lead कर रहे हों. And a lot of time as a leader you have to make all of them work together as well. ये बहुत important एक aspect होता है leadership का कि it is about integration. वहाँ जहाँ हमारा gap आता है बहुत जगहों पे, हम समझते हैं
कि लीडरशिप कैन बी वेरी स्मार्ट थिंकिंग, एंड देन आपने उसको कह दिया और वो चीज़ हो जाएगी. दैट इज वाई यू वुड सी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली स्मार्ट. आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा उनसे ज़्यादा अकल किसी में है ही नहीं. और ऐसा है भी, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ देयर thought process, in terms of clarity of whatever market they are doing. बट जो काम वो स्टार्ट करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता. उसकी रीजन ये होती है कि वो जो लीडरशिप एलिमेंट है, जिसमें आप अपने दिमाग से चीज को ट्रांजिशन करके अपनी टीम्स को साथ लेके आ रहे होते हैं और लेके चल रहे होते हैं, वो करने को वो नाकाम होते हैं. आइदर इट इज बिकॉज दे रियली थिंक दैट दे आर एक्सट्रीमली ब्राइट एंड nobody else can understand that part. ये एक ऑडेसिटी होती है, ये एक रियलिटी है. कई दफा होता है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने लोगों को बाय इन कराना है, अपने को फाउंडर्स को, अपने हेड ऑफ टेक्नोलॉजी को, अपने हेड ऑफ कस्टमर सर्विस को, अपने हेड ऑफ मार्केटिंग को आपने साथ लेके चलना है. एक बड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माय थॉट, बिकॉज मुझे कहा था कि यार आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें. देखो, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप नोट करेंगे कि यूनिवर्सिटीज में बहुत से लोग जो बहुत अच्छा करते हैं, एकेडमिक्स में जो बहुत अच्छा करते हैं, they sometimes don't do that well in practical life. गोल्ड मेडलिस्ट है और वो इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सका. आई माई सेल्फ अ गोल्ड मेडलिस्ट, so I can take that jab. I'm not saying मैं क्यों. उसकी रीजन ये होती है कि जो लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं तो आप अपनी सक्सेस और अपनी मेहनत से आपने हाई जीपीए लिया हुआ है, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं. फिर आप जब किसी कंपनी में लेट से जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला रोल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है, और वही टेक्नोलॉजी या वही टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो आपने यूनिवर्सिटी में ली होती है वही आप लेके आते हैं. यू डू वेल एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, यू डू वेल. मेहनत आप करते हैं, काम आपको आता है, एटीट्यूड आपका ठीक है, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. लेकिन ये याद रखना, जिंदगी के अंदर जो आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, वही आपकी कई दफा सबसे बड़ी वीकनेस बनती है. और उसकी रीजन ये होता है कि खास टाइम के बाद लीडरशिप या रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लीडरशिप कम इनटू प्ले. दैट यू हैव टू नाउ वर्क विद पीपल, यू हैव टू ग्रूम द पीपल, यू हैव टू टेक द पीपल अलोंग. आपको बहुत से काम इन्फ्लुएंस के साथ करने पड़ते हैं, रिलेशनशिप्स के थ्रू करने पड़ते हैं, प्यार मोहब्बत से करने पड़ते हैं. बट अभी तक आपके जहन में ये था कि हर काम जो है मेहनत से और बिल्कुल बस एक ही टास्क फोकस्ड अप्रोच से हो जाता है. बिकॉज अभी तक आपने अपनी बैचलर्स में, अपनी मास्टर्स में और अपने इनिशियल ईयर्स में आपने यही किया होता है. लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स फेल इन दैट. They come in after whatever, immediately after your degree or whatever years, and you say, I'm good, because you certainly आपने start किए तो you're good in some one thing, and that you start out. But कहानी सारी की सारी लीडरशिप की या सीईओ की या को फाउंडर की या फाउंडर की, वो कहानी लोगों की कहानी है, वो लोगों को साथ लेके चलने की कहानी है, वो लोगों को कन्विंस करने की, बाय करने की कहानी है. वो एक बड़ा फेमस कोट है, which I always say, that the higher you go in an organization, the more role power that you get, your ability to use that role power decreases. मैं अगर सीईओ हूं और मैं किसी को भी फायर कर सकता हूं, which is probably true, लेकिन प्रैक्टिकली दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है. आई हैव टू बी मोर डिप्लोमेटिक, आई हैव टू बी मोर पॉलिटिकल, नॉट सेइंग इन एनी रॉन्ग वे, बट आई मतलब मिल मिला के लेना चलना पड़ता है. जितने आप ऊपर जाते हैं उतना आपको ये काम ज्यादा करना पड़ता है. लॉजिकली आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं तो बॉस बन गया हूं, तो आई कैन do whatever I want, and somebody either buys in or just dishes out, but that doesn't work. So जो स्टार्टअप्स की जो बहुत से लीडरशिप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दैट इज रियली अराउंड, आपने विजन भी डिफाइन कर लिया, डायरेक्शन भी हो गई, आपको समझ भी आ गई, ये सारी वो चीजें हैं जो स्टिल आपकी इंटेलिजेंस, रिसर्च, एक्सपीरियंस, उसकी बेसिस के ऊपर है. अब बात आती है सारी की सारी टीम बिल्ड करने की और एग्जीक्यूट करने की. ये सारी कहानी लीडरशिप की कहानी, जिसके अंदर लोग मार इसलिए खाते हैं कि वो अभी भी समझते हैं कि यार जिस तरह मैंने एक एकेडमिक मॉडल को मैंने मास्टर कर लिया, या मैंने एक मार्केट का सर्वे करके मार्केट को समझ लिया, या मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करके मैंने उसकी सोल्यूशन समझ ली है, उसी तरह मैं एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपनी या अपने लोगों को
या अपनी टीम को करने को, वो भी मैं उसी तरह कर लूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता. People are a totally different beast. Leadership fundamentally is all about people. और आपकी direction, your flexibility, your ability to have the people get in, to understand and admit when you are wrong. Yeah, a lot of times, unless and until आपको कोई बंदा कहे कि मैं कभी गलत हुई नहीं, ये तो हो नहीं सकता. So startups बहुत सी मार इस वजह से खाती हैं शुरू में, is that their bosses, their leaders, their founders and their co-founders, they are never able to make that mental switch जिसका मैं बता रहा था ना, individual contributor से जो leader वाला role है. I was able to understand that part because of good mentors. Nothing कि मैंने कोई वो किया. And I figured out 7-8 years into my corporate life कि यार ये कहानी जो है ना सारी लोगों की है, और अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको टेक्निकल के साथ ये जो IQ के साथ EQ वाला जो काम है ना, ये भी बड़ा अच्छा होना चाहिए. And a lot of people don't do that. So वो फंस जाते हैं, and then they get frustrated and then it's a vicious cycle. Startups में भी ये होता है. You certainly with the boss, आपको इनिशियल अगर फंडिंग मिल गई है, आपको इंक्यूबेशन सेंटर ने जगह दे दी है, आपको कहीं ना कहीं ग्रांट मिल गई है, या यू हैव योर ओन मनी, यू बिलीव के यार यू एंड यू आर और आपके फाउंडर्स एक जगह पे और बाकी बिल्कुल एक अलग प्लॉट पे. सबसे ज्यादा leadership at a startup level is really about taking everybody along, making people buy in. जहाँ गलती होती है adjust करें. Leader at the same time, you have to do everything on their own. We are a very large organization, so a lot of things for me, they're departments and their functions that take care of it. In startups, it's a different ball game. You have to do some things. एक दोस्त था, उसने कहा यार एज अ CEO मुझे नलका भी ठीक करना पड़ता है और मुझे क्लाइंट से भी मिलना पड़ता है और उसी शाम मुझे इन्वेस्टर से भी मीटिंग करनी पड़ती है. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. जिस वक्त आपने उसमें जहन में ये बना लिया कि नहीं भाई मैं ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है. हमारी मुल्क में अगर आप IT ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे ना, so there are a lot of lot of organizations which are 20 people, 30 people, 40 people, 15 people, और in terms of their scale and in terms of what they are doing, वो वही काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे. They did not grow. उसकी रीजन ये होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ग्रो क्यों नहीं कर रही. कोई आप पूछें, कोई कहेगा यार मार्केट खराब थी, उनका प्रोडक्ट ठीक नहीं था, उनका हेड ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक नहीं था. A lot of times it comes down to the CEO. उसका ये मतलब है कि यार जो CEO है ना वो खुद ग्रो नहीं कर रहा एज अ लीडर, एज अ प्रोफेशनल. देखिए वो वाली बात है कि आप खुद ग्रो करते हैं ना तो नीचे से कंपनी ग्रो करती है. आप अगर ग्रो नहीं कर रहे तो नीचे एक एक बड़ी कंजेस्टेड किस्म की एनवायरनमेंट हमेशा रहेगी. इसका एक एग्जांपल इक्विटी और उसके अंदर भी है. लॉट ऑफ टाइम्स भी हमारे जो बहुत से लोग हैं, दे डोंट वांट टू पार्ट विद इक्विटी. वो कहते हैं कोई और ना आए, 100% मेरे पास ही रहे, 70-80% मेरे पास ही रहे. ठीक है, बट देन दे आर वो वहीं ग्रो कर वहीं रहेंगे ना, वो इन्वेस्टर लाएंगे ना वो पैसा लाएंगे. वो कहते हैं ना इट्स अ small pond big fish. They always want to be a big fish, but they'll always be in a small pond. Why cannot you be a relatively smaller fish but in a big pond, right? So ये सारी जो कहानियां ना, ये सारी fundamentally mindsets की कहानी है. Leadership is fundamentally a lot of times what you are doing to yourself, बिकॉज वही चीज पे ट्रांसलेट हो रही है. ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कि आपको लोगों को लेके चलना है, आपको डायरेक्शन सेट करनी है, ये सारी उस वक्त होगी when as a leader you are able to do that to yourself. अगर आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे ना कि हाउ टू ग्रो योरसेल्फ, हाउ टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, ब्ला ब्ला ब्ला, आप सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लें, वो सारी जो भी कहानियां आगे होंगी उनमें हमेशा अच्छी जगहों पे पहला जो स्टेप होगा ना वो ये होगा कि अपने आप को प्रमोट करें. प्रमोट योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ, अपना थॉट प्रोसेस, अपना सोचने का तरीका, वो चीज जो है ना आप ठीक लेके आए. ठीक है, सो ये तो एक जनरल जो है ना लीडरशिप के बारे में वो है. अब इसके मल्टीपल फैसेट्स हैं. एक दो तीन मैं बात कर लेता हूँ बिकॉज इट्स स्टिल अ वेरी वेरी ब्रॉड फील्ड. एक ये कि वी आर ऑल स्टिल क्लियर कि एज अ लीडर हम कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या करना है, आप टीम को साथ लेके चलते हैं, एग्जीक्यूशन में भी आपके पास टीम अच्छी है, बट यू आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन दैट लार्ज विजन इनटू
रिलेटिवली स्मॉलर थिंग्स के हमने अचीवमेंट्स, हमारे माइलस्टोन्स के हैं, वो आप बस कहते हैं यार मैं चलता रहता हूँ, कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। सो ऐसा होता नहीं है। आप पेशावर से कराची जा रहे होंगे तो आप कुछ माइलस्टोन्स डिफाइन करेंगे, यार पहले मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, फिर वहां से लाहौर जाऊंगा, या फैसलाबाद से टर्न करूंगा, अगर मैंने इतना टाइम रात को हो जाएगा मैं यहाँ रुकूंगा, लंच यहाँ करूंगा। लीडरशिप में खास तौर पे स्टार्टअप्स में, और फॉर दैट मैटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में भी, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें नई हो रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टार्टअप्स में हो रही होती हैं। यू ऑलवेज हैव टू डिफाइन आउट कि दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन what I'm trying to achieve in this quarter, what I'm trying to achieve in this month, what I'm trying to achieve in these 6 months, जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप अपना लीडरशिप को फॉर्मलाइज नहीं कर रहे। अब देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बुक था, मुझे याद नहीं किस बुक में था, बट दिस सेड किया, देखो अगर आपने एक लॉन्ग टर्म जाना है, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर बिल्डिंग अ गुड प्लेटफॉर्म, राइट? मैं देख रहा था, यू नो प्रॉब्ली कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल में कहाँ जाएंगे अगर एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। हाउ डू यू अचीव दैट प्लान? यू कैनॉट से कि दूसरे साल में मैं ये कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तीसरे साल में करूँगा, एक रफ आइडिया होगा। बट इफ आई टेल यू कि आज अगर आपने स्टार्टअप आज स्टार्ट किया, व्हाट विल यू बी डूइंग इन द 14th मंथ, व्हाट यू विल बी डूइंग इन द 18th मंथ, यू वुड नेवर, यू डोंट हैव एन आइडिया। आपको कल का नहीं आइडिया होता, रोज चेंज हो रही होती है। तो उसने कहा जी, इन ऑर्डर टू फॉर अ लीडर, इफ यू आर रनिंग अ मैराथन, the way to run a marathon is by running very short sprints. you know 3 महीने का आपने क्वार्टर एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, यू मूव इन एंड यू अचीव दैट, उससे लर्न किया, क्विक साइकिल, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इन अ वेरी आइटरेटिव वे। आई स्ट्रांगली encourage everyone to study OKRs, objectives and key results. That's one of the best ways in which leaders use to define their uh, कि आपने इस क्वार्टर में, 6 मंथ में, इस महीने में क्या अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए आपको की रिजल्ट्स क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू रियली वांट टू बिकम रेवेन्यू जनरेटिंग बाय एंड ऑफ जून 30, एंड ऑफ जून 2021, देन इसका की रिजल्ट आपको बताना है कि यार मेरी टेक्नोलॉजी स्टैक पूरा हो जाना चाहिए, मेरी कस्टमर सर्विस बिल्ड हो जानी चाहिए, मेरी क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए, व्हाटएवर। Unless and until you work backwards defining those quarterly objectives, और दुनिया की सारी organizations, आप बड़ी organizations लें या startups लें, they are working with OKRs or similar models. I recommend OKR because I use them and I believe they are very very helpful. But कई दफ़ा हम ये कर रहे होते हैं कि हम बस चल रहे होते हैं, हम बस we are just going along, आज इधर हुआ इस तरफ चल पड़े, उधर हुआ उस तरफ चल पड़े। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। खाली इवन स्प्रिंट्स में ले आना या एजाइल में ले आना इज आल्सो नॉट इनफ, बिकॉज इट जस्ट स्ट्रीमलाइंस योर वर्क, लेकिन आपने अचीव करना क्या है इन अ शॉर्टर साइकिल। दैट्स वेयर द लीडरशिप कम्स इन अ स्टार्टअप एंड फोर्सेस कि भाई देखो बड़ी चीजें हैं, शुरू में इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डिसाइड हमने क्या नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि हमने एमवीपी बनाने में क्या क्या करना है। और एमवीपी जब आप लोगों ने बनाया, जिस तरह खावर वाज सेइंग एट द स्टार्ट, तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि उस एमवीपी में क्या क्या चीजें नहीं होंगी। दैट समटाइम्स अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर एज कंपेयर्ड टू क्या होना चाहिए। सो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी लेजर फोकस्ड, वेरी शार्प फोकस्ड कि आपने अचीव क्या करना है। A lot of time people don't do that. They just keep going along. अच्छा, कल से एक और दोस्त ने कहा यार फलां एक लीड है, आप उस तरफ चल पड़े, फिर एक और हुआ उधर चल पड़े। My take is that you will always have to be very very leadership. So अगर आपने OKRs नहीं पढ़े, objectives and key results, इसके ऊपर नेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, बुक्स भी हैं। इंटेल से स्टार्ट हुआ था, गूगल यूज करता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस दैट। आई बिलीव, मैं अपनी बहुत सी जगहों पे देखता हूँ, हम इंक्यूबेशन सेंटर्स में, एक्सेलरेटर्स में, आई डोंट नो, हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं, हम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, बिजनेस प्लान, सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, बट हम जो एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है जिसमें, और अगेन दिस इज नॉट मैनेजमेंट रोल, दिस इज लीडरशिप रोल, बिकॉज क्या एग्जीक्यूट पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है शॉर्ट एग्जीक्यूशन का, लॉन्ग एग्जीक्यूशन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो पूरी स्टार्टअप की जो साइकिल है वो उसके अंदर आती है। अच्छा, 2-3 और पॉइंट्स एंड देन विल ओपन इट अप टू क्वेश्चंस।
देखो एज ए लीडर ना, मैं आपको ये बता रहा था, एक तो ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह का काम हम लोगों का है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है, सो हाउ यू वर्क विद पीपल, how you grow them, how you behave with them, how much respect you give them, how much you take them along, how much you grow them, कोचिंग उनकी, मेंटरिंग उनकी, उनकी ऊंच नीच का में उनकी हेल्प करना. हम जब तक इन चीज़ों को नहीं करेंगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू अ स्टार्टअप फाउंडर और सीईओ हु इज वेरी गुड टेक्निकली, लेट्स से, या हु इज वेरी गुड इन सेल्स, जिस भी फंक्शन से, जिस भी बैकग्राउंड से आया उसमें वो बहुत अच्छा है. जब वो बहुत अच्छा होता है ना किसी चीज़ में, अगेन माय पॉइंट के जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बनती है. बिकॉज यू बिलीव कि आई एम गुड, एवरीबडी एल्स हैज टू बी गुड. अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा. ये इंडस्ट्रियल माइंडसेट भी है कि यार एक फैक्ट्री का पार्ट जो है वो या मशीन का पार्ट एक नहीं ठीक चल रहा, आप दूसरा निकाल, दूसरा लगा लें. पीपल आर नॉट इंटरचेंजेबल, पीपल आर नॉट रिप्लेसेबल, दे नॉट मशीन पार्ट्स. एंड लोगों के साथ डील करना आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, आपको कोई कंपनी नहीं सिखाएगी. और उसको सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपना थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपने लीडरशिप, स्टार्टअप्स, अपनी चीज़ों में जाना है तो आपको टेक्नोलॉजी ये सब कुछ तो करना ही है, बट ये नेसेसरी है, बट ये सफिशिएंट नहीं है. सफिशिएंट सिर्फ उस वक्त होता है व्हेन यू ग्रो योर पीपल. अगर आप देख लेंगे ना स्टार्टअप जो सक्सेसफुल हुई हैं, वो उस वक्त हुई होंगी रियली मानो में सक्सेसफुल, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ. when they are able to really have the key team, और उसके साथ जो नई टीम उनके आ रहे होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं, and they grow and they enjoy. Otherwise it's just a matter of time where people, if they start leaving you, you won't be able to succeed. Finally, दो तीन और points, and again ये सारी मेरी thoughts हैं, you know, again there's no specific order to it, but things that I have done or I have learned, whether by doing it or whether by not doing it. और ये कुछ चीज़ है जो ज़रा सी, you know, it is not very scientific. It is really कि आपका as a leader जो value system है ना, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. You know, if you are a tough boss, that's perfectly okay, but you cannot be a disrespectful boss. या आप जिस मकसद के लिए आए हैं या जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, you have to be very honest about it. कि इसमें कोई कोई गेम नहीं है, कोई आप ये दिखा के वो नहीं करना चाह रहे. आप सिर्फ इसलिए किसी स्टार्टअप में नहीं आए हैं कि यार मैं एक्चुअली अपना बाकी वाला काम करता रहूंगा एंड इसके लिए मैं कहीं से ग्रांट ले लूंगा. लॉट ऑफ पीपल डू दैट. आप का जो बेसिक काम करने का तरीका है, आपका जितना भी कंपनी को लेके चलने का तरीका है, लोगों के साथ क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल साइड पे, इन्वेस्टर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ये सारी चीज़ें लीडरशिप लेवल से आती हैं. अगर आप देख लें ना कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जिंदगियों में जो हमें मिलेंगे ना, दे आर पीपल हु लाइक टू फॉलो, they like to be led. ये ह्यूमन नेचर है. नॉट एवरीबडी इज बोर्न टू बी अ लीडर, नॉट एवरीबडी वांट्स टू लीड. somebody may want to just be told कि क्या करना है and they will do it, and that's okay, there's nothing wrong in it. so ये जो है ना कहानी, जिसके अंदर आपका जो वैल्यू सिस्टम आप लेके आएंगे ना ऊपर एज अ लीडर, वही वैल्यू सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा. आप अपने टी बॉय और जेनेटर के साथ जिस तरह से बात करेंगे ना, आपकी टीम भी उसी तरह से करेगी. आप गलत तरीके से करेंगे, आई कैन अश्योर यू आपकी जो टीम या आपके नीचे जो लोग होंगे वो उससे दुगनी या 3 गुना ज़्यादा गलत तरीके से करेंगे. बिकॉज यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट, और जो जो प्रेसिडेंट नीचे अडॉप्ट होता जाता है वो एम्पलीफाई होता जाता है. अच्छा होगा तो वो भी एम्पलीफाई होगा, ख़राब होगा तो वो भी एम्पलीफाई होगा. इन चीज़ों पे ज़रूर अपना वैल्यू सिस्टम एज एन ऑर्गेनाइज लीडर, और बहुत सी चीज़ें लीडर को सिंबॉलिकली भी करनी पड़ती है. मैं अपने कमरे से जब भी निकलता हूँ
मैं अपने कमरे की लाइट्स और पंखा या एसी ऑफ करके निकलता हूँ। अगर एक सीईओ है, अगर एक कमरा है, मेरे कमरे से कंपनी के बिल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत माइन्यूट फर्क पड़ेगा। लेकिन इफ आई शो बाय माय बिहेवियर, अ सिंबॉलिक बिहेवियर कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी, देन अदर्स विल डू। और कुछ नहीं होगा तो वो सारे केयरफुल जरूर हो जाएंगे। सो ये कोई 8-7-8 पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा था। I think I will stop here. I would really want everybody to come in with questions, and I'll be very happy to answer. However, up to you, and I hope this was a little helpful, even it was very subjective. Assalamu alaikum, Athar. Athar, I'm the program manager. My name is Farhad Shafkat, and thank you so much. Thank you so much for joining in. This was the basic, the main idea was that you join in and you share your basic आपका experience क्या था with our startup, so that they can learn from the best. Sorry. So there are a few questions that I just want to ask, जिससे I'm pretty sure कि बहुत से startups के भी queries बीच में वो हो जाएंगी, answer हो जाएंगी. So you did touch upon it, but I would want you to talk about how a leader finds his true north. So when you're a leader, there are a lot of decisions that you have to make, which obviously do not are not aligned with the management की आपकी जो team है नीचे, या जो basically जो सबसे lower level पे लोग काम कर रहे होते हैं, maybe they don't have that understanding कि ये क्यों बोल रहे हैं इस तरह, questions भी उस पे होते हैं. So how do you align your vision and अपने mission के साथ किस तरह से आप align करते हो ताकि वो trickle down हो के भी it makes sense to everyone, and how do you ensure कि जो decision आप ले रहे हो वो आपको, क्योंकि आपकी सारी management आपसे डरती है, you're the CEO, you're the leader, right? So आपको maybe no one comes to you and says कि नहीं, I think कि ये ऐसा नहीं, इस तरह होना चाहिए, and at times you might be wrong as well. So how do you work on that? How do you ensure कि जो आपने decision लिया है that is something जो कि beneficial है पूरी कंपनी के लिए? देखो, it's a good question. देखो फरहाद, एक जो चीज है ना कि the leadership at any level, especially the highest level, it's a very lonely place. कहते हैं ना, CEO is the most lonely place because कोई है नहीं आपका peer जिससे आप बात करें, और बहुत से लोगों से आप बात कर भी नहीं सकते, और बहुत से लोग one experience that I had कि देखो, you can evaluate your team, but your team cannot evaluate you. They can give some feedback or some input, but they really cannot evaluate you. आप अपनी टीम को इसलिए evaluate कर सकते हैं क्योंकि most likely आप उन तमाम चीजों से गुजर चुके हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं, but वो आपको इसलिए evaluate नहीं कर सकते क्योंकि a lot of things that you are doing, they may not have done. They may not have been a startup founder, they may not have been a CEO, but they can certainly give an input and perspective. So यहाँ थोड़ी सी चीज, it may not come out as very, I don't know how would it come out, but जो कंपनी चलाना या स्टार्टअप चलाना, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इट. ठीक है, ये कहीं कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ना हो सकती है. बहुत सी जगहों के ऊपर एज अ सीईओ, एज अ लीडर, एज अ फाउंडर, यू हैव टू मेक कॉल्स, यू हैव टू लिसन टू एवरीबडी, बट यू हैव टू मेक कॉल्स, एंड those calls you can be completely in minority. So एक CEO एज अ लीडर अगर डेमोक्रेटिक उसमें फंस गया कि यार मैं वो चीज करूं जो ज्यादा लोग जिससे कंफर्टेबल हैं, तो कभी भी कहानी जो है नहीं होगी. सो ये एज अ लीडर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू विल हैव टू मेक जजमेंट्स, यू विल हैव टू मेक कॉल्स जो कि मे बी गो कॉन्ट्री टू एवरीबडी एल्स, या जो वो कर रहे हैं. इसमें दो चीजें हैं. एक तो ये कि यू शुड एब्सोल्युटली टेक इनपुट फ्रॉम एवरीबडी जहां तक हो सकता है, या जो भी रेलेवेंट लोग हैं, ताकि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल आर हर्ड, दैट्स गुड इनफ फॉर देम कि यार एटलीस्ट हमारी बात सुनिए. बहुत से लोग होते हैं जिनका मसला होता है मैं हल नहीं कर सकता, बट मैं उनको सुन लेता हूँ ना, तो आधी चीज वहीं बेहतर हो जाती है. सो लॉट ऑफ टाइम ओके, यू हैव हर्ड देम, यू हैव इनकॉर्पोरेटेड देयर इनपुट, बट देन इट कम्स टू सेम थिंग कि योर रिलेशनशिप विद योर टीम एंड यू रियली स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द अदर्स, वे दे नो कि यार ठीक है, अगर ये चीज अपनी उसमें भी कर रहा है, एक डिफरेंट डिसीजन है जिससे मैं एग्री नहीं कर रहा, देन आई विल हैव टू एग्री विद देम एंड आई विल हैव टू गो अलोंग विद देम. मैंने जितनी भी इंटरनल बैठ के सीईओ, CTO, CMO सारे बैठे हुए हैं, जितनी लड़ाई करनी है यहाँ इस कमरे में कर लो, बट वंस द CEO मेक्स अ कॉल एंड आउटसाइड गॉड, इट्स जस्ट वन मैनेजमेंट या वन थिंग दैट गोज आउट. आप बाहर जाके अपने किसी इख्तलाफात का इजहार नहीं कर सकते.
it's not a parliament. So you, I think, as you, ये हमें accept करना पड़ेगा, and that's why you have to be on top of your game in terms of learning, in terms of understanding things, in terms of where कितनी conviction है आपकी चीजों में. Because the minute a founder, startup founder या CEO falls into the trap of being popular या being acceptable या सबके साथ लेके चला, मैंने majority decision making की, you will sooner or later you will fall short. Doesn't mean that you go ad hoc or you go bizarre. So इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक से जरूर input लें, but there will be a significant number of times when you'll have to make a call that goes beyond what others are thinking, and I think that has to be accepted. But then it depends on कि आपका और आपकी टीम का relationship कैसा है. So क्या वो जो एक contrarian situation है वो आपको accept, वो आप लोग accept कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. And you may be wrong. अगर मैं आपको बताना शुरू करूं मैं कितनी दफा गलत हुआ हूं, तो you wouldn't have invited me to the talk. So अच्छा, don't you think कि अगर आप अपनी जो टीम है उनके साथ, so there's a way of doing, so जो मैं सोच सकता हूँ, maybe when you have a discussion with your team and the team comes up with a few points and says कि ये ऐसा हो सकता है, and based on those numbers या figures या जो data वो लेके आ रहे हैं उसके ऊपर अगर एक leader जो है he decides कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, so don't you think कि उससे अपनी टीम के साथ उनका एक वो भी बेहतर हो जाता है, जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप आप कहते हैं, because leader सिर्फ तब leader है when he has people following him या respecting him, so you don't become a leader अगर वो आप बिल्कुल ही वो करते नहीं, I agree. That's what I said कि आप सबकी सुने और ये तमाम डिस्कशन, देखो जितने भी डिसीजंस होते हैं ना वो दो लेवल्स में होते हैं. द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, द सेकंड इज क्वालिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव में तो नंबर सबको पता है, सब अपना, बट नंबर्स के अराउंड भी स्टोरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं. सो एवरीबडी ब्रिंग्स इनटू द टेबल एंड एवरीथिंग. बट ये देखो कई दफा होता है कि आपने दो लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो फॉर अ टॉप CTO पोजीशन एंड बोथ ऑफ देम really उनके जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने किया है, जो एवेल्युएशन की, वो बराबर है. बट रियली एज अ लीडर आपने फाइनल कॉल करनी है, किसी एक को पिक करना है, तो वो एक गट फीलिंग भी कई दफा होती है, कल आपकी एक्सपीरियंस भी होता है, एंड यू मे पिक अप द पर्सन जो कि 85% हो एज अगेंस्ट समबडी हु इज 90%. बट आप सोचते हैं ना कि यार ये तरह यूनिवर्सिटी भी इसकी तरह ढीली थी, काम भी इतनी अच्छा, बट मेरा ख्याल है कि ये वाला जो है ना, बट वो 85 और 90% वाला काम जो नंबरिंग है वो तो होना ही चाहिए ना पहले. सो क्वांटिटेटिव काम तो सब, और वो सब मिलके कर रहे हैं. बट वो एक सिचुएशन आएगी जिसके अंदर इफ अ CEO believes कि यार this person has to be hired, but you have talked with everybody, you have taken everybody's input, और बहुत से मसले वही हाल हो जाते हैं जब आप सबका इनपुट ले लेते हैं और एक कंसेंसस बेस्ड करने की कोशिश करते हैं. All I was trying to say is कि there will be many occasions when there won't be a consensus, when you will have to do a vote, when they have to be a casting vote, कहते हैं ना इस तरह. और वो आपको leader has to be very open to be unpopular or making unpopular choices also. You have to be very open about it. I'm just trying to that nobody should get into the thought process of being just doing everything on a consensus or a majority basis. But again, decisions अगर आप quantitative पहले करें layer and then a qualitative judgment. ठीक है, अगर आप बिल्कुल क्वालिटेटिव कर लेंगे, आप सोचेंगे नंबर्स ही नहीं करेंगे, आपकी गट फीलिंग हुई, तो यू विल बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम. बिल्कुल. सो बिफोर आई ओपन द क्वेश्चंस फॉर स्टार्टअप्स, मैं एक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह पे लोग डिस्कस करते हैं कि आर लीडर्स बॉर्न, या फिर आप वो स्किल्स जो है वो आप सीख सकते हो, बिकॉज यू स्पोक अबाउट अ बुक दैट यू फॉलो. तो डू यू थिंक एक बंदा, एनीवन कैन बिकम अ लीडर, या फिर वो एक बचपन से ही एक बंदे के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो बचपन से ही लीडर है तो वो एंड पे भी अच्छा लीडर होगा, या फिर दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न अलोंग द वेज में? सो माय टेक इज दैट इट्स ना, मेरा तो ख्याल है कि कोई बॉर्न भी कोई नहीं होता, तो आपको सीखना ही पड़ता है, और इट्स एन एक्वायर्ड थिंग. बिकॉज ये जरूर है कि आपकी कुछ कई दफा कैपेबिलिटीज हैं या इनबॉर्न आपकी कुछ टेंडेंसीज हैं which are helpful to you. For example, या कई दफा आपका जिस तरह से भी आपकी एजुकेशन हुई है या जहाँ भी आपको हुआ है, आपको ज़्यादा एक बेनिफिट मिल गया है. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सिंपल, मेरा इसमें जो आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर आप दुनिया के लीडर्स उठा के देख लें, पॉलिटिकल लेवल, टेक्नोलॉजी के साइड पे, आपको क्या कॉमन ट्रेट्स मिलते हैं? कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है.
कोई सेल्स का है तो कोई टेक्नोलॉजी का है. Somebody is young, somebody is old, somebody comes from a good background, somebody comes from a bad background. So itni diversity hai in the leaders that there cannot be one template, right? But common चीजें आप निकाल लेंगे तो ये होगा कि they are very very clear on what they want to achieve. Conviction है, and then जैसे कहते हैं ना grit. बड़ी famous TED talk भी थी lately कि यार at the end of the day they are able to do things day in day out. और जो सबसे ज्यादा उस चीज को सरवाइव कर जाएगा वो जो है वो कर लेगा. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन देयर इज नो बॉर्न आप कहें कि नहीं है. एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर हो सकता है बट एनीबॉडी कैन बिकम अ लीडर. Because so how if you'd like to start with questions startups ke, because there are a few people who've raised hands and there's a discussion that started in the chat box as well. मेरी क्लास अभी नहीं so basically we are actually live on Facebook as well, so I was just looking कि उधर भी कोई questions आए हैं तो we can incorporate them as well. So we are short on time. Athar, before I hand over the questions to startups, I have a small question and it is very practical one because this is something I see in every cohort. So in every cohort 3 to 4 startups break up because when it comes startup के अंदर 2-3 founders होते हैं, ठीक है, उनकी almost equal equity होती है. तो जो उन फाउंडर्स का एटीट्यूड होता है उसकी वजह से स्टार्टअप्स दे ब्रेक अप. तो जस्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में है जब आपके साथ आपका जो को फाउंडर है जो आपका दोस्त भी है, ठीक है, उसके इक्वल शेयर्स भी हैं, तो उसमें एक लीडर को किस किस्म का एटीट्यूड रखना चाहिए कि योर स्टार्टअप डजंट डाई, मतलब व्हाट ट्रेट्स शुड दैट पर्सन बी हैविंग? देखो इसके अंदर और जो पहली चीज है कि जो अगर सबकी बराबर इक्विटी है देन एवरीबॉडी इज अ लीडर, दे आर जस्ट डूइंग डिफरेंट फंक्शंस, राइट? लेकिन ये जो काम बहुत ज्यादा होते हैं उसकी रीजन ये है, मोस्ट ऑफ इट इज नथिंग टू डू इन माय ओपिनियन विद लीडरशिप देन इट इज विद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फंडामेंटल्स आप समझते नहीं है कि दोस्ती यारी में आप स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट बीइंग वेरी क्लियर कि यार हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस टू वर्क टुगेदर क्या होंगे, कहते हैं टीओआरस क्या होंगे हमारे रिलेशनशिप के, कहते हैं बाद में देख लेंगे. बट बाद में फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं. सो इन माय ओपिनियन दैट प्रॉब्लम कैन बी रियली सॉल्व नॉट थ्रू अ लीडरशिप थिंग बल्कि थ्रू अ प्योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग अप समथिंग, आपको आपका रिलीजन भी कहता है यार आपस में भाइयों में भी कोई चीज करनी है तो लिखत पढ़त करके कर लो, राइट? तो आप शुरू से बड़ा आप हेल्प लें जिन लोगों को समझ है. आप फाउंडर्स रिलेशनशिप क्या होता है, फाउंडर्स एग्रीमेंट या शेयर होल्डर एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर कट पहले सबसे पहले करें. सबकी अंडरस्टैंडिंग सब एक पेज पे होंगी, वो लिखी भी होगी. ये जो इश्यूज आते हैं उस वजह से आते हैं कि आपने टाइमली जो है द राइट क्वेश्चंस को ना डिस्कस किया होता है और ना आंसर किया होता है, तब आप ग्रो करते हैं, फिर मिसकंसेप्शंस आती हैं. आई थिंक रियली इट्स नथिंग टू डू इन माय ओपिनियन विद स्पेसिफिक लीडरशिप थिंग्स. आई थिंक इट इज अबाउट not doing the right thing at the right time. So it is more about training and what FI or NIC or platforms like this need to inculcate कि ये टाइमली कर लें, नहीं तो बाद में स्पेशली व्हेन द स्टार्टअप स्टार्ट्स बिकमिंग सक्सेसफुल उस वक्त ये प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं. जब चल ही ना रही हो चीज तो फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब चलनी शुरू हो जाए देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. Thank you so much, Athar. Muhyiddin, you have a question. You were first one to raise the hand. Assalamu alaikum. Thank you. It was a really interesting discussion and मेरा as such कोई question नहीं है, but I wanted to share my experience in the part के जब आपने वो बात की कि काफ़ी दफ़ा आप जो है तो लोगों की ओपिनियन को आप इग्नोर करते हो और उसमें it's for their betterment but just because they don't have an idea about it. तो मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस काफ़ी होता है. लोग कहते हैं मेरा स्टार्टअप जो है टेलीपोर्ट, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी. तो हम जब अपनी बाइक हमने अनवील की उसका प्रोटोटाइप, तो काफ़ी सारे लोग जो है तो वो लगे हुए थे कि भाई इसमें आप पैडल लगा दें तो जब चार्ज उसमें ख़त्म होगा तो बंदा पैडल करके वो जो है तो स्टिल अपने घर पहुंच पाएगा. बट द फैक्ट वाज कि जब अगर हम पेडल लगाते तो उससे जो फ्रिक्शन और वेट ऐड होता वो जो है तो इंस्टेड ऑफ आपको वो सेफ्टी और वो जो रेंज एंजाइटी है वो ख़त्म करने के बजाय
वो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वो आपकी रेंज को 5 किलोमीटर तक कम कर रहा था, और वही अगर आप हटा देते तो वो वेट और फ्रिक्शन कम होके तो वही 5 किलोमीटर आपको बैटरी से ही मिल जाता, आपको पेडल करने की जरूरत ही ना पड़ती। बट स्टिल पीपल वुड से कि भाई इसमें पेडल लगा दें, नॉट नोइंग कि अगर हम इसमें पेडल ना लगाएं तो वो उनको वो 5 किलोमीटर जो है तो पेडल ही नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ जो है तो कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, और उनको बाज़ाहिर लग रहा होता है कि यार ये तो शायद इस चीज को इग्नोर कर रहा है, बट यू वर राइट इन व्हाट यू सेड के जब एक्सपीरियंस उनका नहीं हुआ होता तो you have to go against the democracy sometimes, and that is what makes you the leader of that specific thing. Thank as you. long as you don't, as long as if this is happening every time, then there's a problem also, right? So आपकी जो team है, सारे लोग हैं, all I was saying is कि some of the times you may have to make an unpopular or non-majority call, and it's okay when you have to make that. But then you as a leader need to own that as well. Thank you. Ji, Zara, you have a question, Zara. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो क्वेश्चंस होंगे। एक तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कह सकते हैं कि बेसिक भी और इम्पोर्टेंट भी है। वो मैं ये कहना चाहूँगी, एनी स्पेसिफिक थॉट्स ऑन वुमेन लीडरशिप, जो कि एक आप देख रहे हैं कि वुमेन सीईओज जो है वो बहुत कम है, जो भी आजकल स्टार्टअप्स हैं उसमें। इसी तरह हमारे पास दूसरा मसला ये है कि वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट जो है वो रेज कर पाती हैं, और उसकी वजह वही है हमारा एक किस्म का एक जो बायस पाई जाती है। और उसमें ये चीज़ बहुत होती है कि जब हम किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं और एक बंदा किसी इन्वेस्टर से बात करता है, तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप कर लेंगी, आपसे हो जाएगा, आपकी फैमिली, आपका ये, आपका वो, लाइक वो हमसे पर्सनल हो जाते हैं कि हम मतलब फीमेल है तो हमारी फैमिली है, हमारे ऑब्लिगेशंस हैं और ये चीजें हैं, तो हमें जो है अब मर्दों के मुकाबले में अपने आप को डबल मेहनत करके मनवाना पड़ता है। तो being a CEO is a lonely business, but being a female CEO is extremely lonely business. लोग आपको बिल्कुल नहीं समझते। तो एनी स्पेशल थॉट्स ऑन दिस के बीइंग ए फीमेल लीडर एंड सीईओ, कोई ऐसे टिप्स आप हमें देना चाहेंगे जो कि स्पेशली हो? और दूसरी चीज एक मैंने जो पूछनी थी, जो मेरा स्टार्टअप है, इट्स मोर लाइक अ मूवमेंट, इट्स मोर लाइक समथिंग इंस्पायरिंग। So apart from transformational leadership, is there anything like inspirational leadership? How can I inspire my team and the people I'm going to induct in my project, कि वो उनको मैं उसी तरह इंस्पायर कर सकूं जिस तरह मैं अपने एक आइडिया को लेके चल रही हूँ और मैं खुद उससे इंस्पायर हूँ, मेरी एक अपनी इमोशनल अटैचमेंट है। तो हाउ कैन आई डू द इंस्पायरेशनल लीडरशिप? ये दो चीजें मेरी हैं। थैंक यू ज़ारा। आई थिंक जो पहले आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है, मैं ब्रीफली पहले वो आंसर कर देता हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ना आपके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव्स और जो चीज़ें मोटिवेट करती हैं वो फ़र्क होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन थिंक और शुड थिंक इन एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह से फाउंडर या सीईओ कर रहा है। आप मुख्तलिफ जब फंक्शन में आ जाते हैं तो उनकी इंस्पिरेशन इज मोर फोकस्ड, so they don't have to exactly think like you, but you have to make sure कि आप वो अपने functions के हिसाब से आप अपने larger goals को किस तरह से उनके functions में translate करें। टेक्नोलॉजी वाला है तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो करेगा। you have to translate your vision at a lower level, जिसमें चीज पे जरूर shrink जरूर होगी, and it's okay, so that's one. दूसरा ये कि कोई भी आपके साथ जो आ रहा है वो लीप ऑफ फेथ तो ले रहा है फाउंडर्स के साथ, नई स्टार्टअप में आ रहा है, वो एज एन एम्प्लॉय आ रहा है या एज एन इक्विटी ओनर आ रहा है, आपकी फिर ये कन्विंसिंग पावर है और मोटिवेशन पावर है कि आप कैसे अपने आइडियाज को उसके साथ करते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हम जिन स्टार्टअप्स के साथ डील करते हैं, बिकॉज वी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स आल्सो, हम बड़ा क्लियर उसके ऊपर होते हैं कि यार ये अगर वो अपनी को फाउंडर्स को कन्विंस नहीं कर सक रहा
तो फिर ये आगे इन्वेस्टर्स को या उनको कैसे कन्विंस करेगा? लॉट ऑफ टाइम पीपल बाय देयर मैन, अगर नहीं कर सक रहे तो मे बी यू आल्सो हैव टू थिंक के कहाँ गैप आ रहा है। जो पहला वाला पार्ट था उसके ऊपर ब्रीफली मैं उस पर भी इनपुट दे देता हूँ। बिल्कुल हमारी सोसाइटी के अंदर एक बायस और एक वो इन जनरल एक चीज मौजूद है, women leadership, women employment. I think things are getting better. उसके अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा कई दफ़ा ये चीज़ें बड़ी इमोशनल हम इसको लेते हैं। मेरा ख्याल है कई दफ़ा चीज़ें इमोशनल से ज़्यादा उनको पहले ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। एक इन्वेस्टर विल ऑलवेज आइडेंटिफाई एनी रिस्क्स, जो कि अगर कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या रिस्क होंगे। मैं एग्जांपल इसकी ये देता था कि ये ज़रूर लड़कियों से पूछा जाता है, या एटलीस्ट ये कंसर्न ज़रूर होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि यार कल यू मे गेट मैरिड, यू मे रीलोकेट, यू मे मूव अवे, तो आप जॉब तो नहीं छोड़ते। मेरा उसके अंदर ये था कि जब हमारे साथ जो हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर कर रहे होते हैं, हम लड़कों से भी हमारा जनरली कई दफ़ा बिल्कुल ये होता है कि यार कल आप बाहर मास्टर्स के लिए तो नहीं चले जाएंगे, और वो कंसर्न्स, और वो भी जॉब छोड़ देगा, फ्रेश ग्रेजुएट है, साल 1.5 साल के बाद वो बाहर छोड़ने चला गया। सो रिस्क हर जगह पर आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत दफ़ा हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई अगर अपने एम्प्लॉयमेंट या कंपनी के लिए रिस्क, या इन्वेस्टर अपने उसके लिए रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसकी कोई बायस वाली रीजन है या एक रिस्क एनालिसिस है। अब कुछ रिस्क हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड है। बहुत से हैं जो मर्दों के साथ भी एसोसिएटेड, बहुत से लोग हम इस वजह से भी कई दफ़ा हायर नहीं करते, बिकॉज वी नो के दे वुड गो अवे फॉर मास्टर्स आफ्टर 1 year or 2 years। सो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत दफ़ा है वो बंदों पे भी अप्लाई होता है। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है, मेरा अपना ख्याल है कि इन्वेस्टर आर वेरी वेरी unemotional people. They would just look at it कि what makes sense as a business plan. अगर आप आखिरी 1.5 सालों में उठा के देख लें तो बहुत सी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं जो कि वुमेन लेड हैं। अभी सेहत कहानी में हुई है, अभी उससे पहले ये ऑर्गेनिक फूड्स की एक थी, मुझे उसका नाम भूल गया है, बट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स है, मौका ऑनलाइन है। सो आई थिंक द स्टैट्स आर एक्चुअली शोइंग दैट there is a lot of startups that are getting funding that are actually women। बहुत से funds हैं जो impact driven funds हैं, but ये वो investments हैं जो actually investor thought कि these are just very good founders and they are very good startups and they would invest in them। इन्वेस्टर जो है ना, अच्छा इन्वेस्टर होगा वो किसी भी कंसिडरेशन को नहीं लाएगा, वो रिलीजियस, एथनिक, जेंडर, उन तमाम चीज़ों को साइड पे करता है और वो रियली फोकस करता है व्हाट मेक सेंस। लेकिन ये आपको जरूर रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि जहाँ कुछ सीईओ है या हायरिंग मैनेजर है या जो है, वो अपने रिस्क जरूर मैनेज करें। ठीक है, वो अब जहाँ तक आपका लास्ट पॉइंट, जस्ट लास्ट 30 सेकेंड, मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर रहे हैं कि वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन increasing the leadership at various levels of the organization for women। ठीक है, हमारी हालांकि 17% women employment है, which is much more than the industry average, but हम उसमें women leadership बढ़ाना चाह रहे हैं। But we'll do that by improve, जहाँ gaps हैं या जहाँ उनको help चाहिए उनको हम help करेंगे, rather than कि force करने की नहीं यार इतना कोटा जरूर होना चाहिए, because that is also not a sustainable way। बट माई टेक इज के आई थिंक थिंग्स आर वेरी मच इम्प्रूविंग, और हर बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर इन्वेस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंडीशंस फैसिलिटेट करने में हेल्प करे जहाँ ख्वातीन को उनको बराबर की मौका मिले। बिकॉज माई ओपिनियन जितने women colleagues के साथ मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ काम किया है, दे आर एज गुड और बेटर देन द मेल कॉलीग्स और मेल लीडरशिप्स में कहीं मुझे कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी का कभी भी कोई गैप या डिफरेंस नहीं। I would like to highlight कि NIC पेशावर के जितने स्टार्टअप्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसमें 62% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फीमेल लेड स्टार्टअप्स में हुई हैं। इट्स एन ओपन फैक्ट कि अभी तक NIC पेशावर के जितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है 62% फीमेल लेड स्टार्टअप्स में। सो Zara, don't be sentimental about it. So Atul, do we have time for another question? आप अपना कर लें जितने लोगों के साथ। आई थिंक आई कैन मैनेज अनदर 10-15 मिनट्स। एक्सक्यूज मी सर, आसिफ ने सबा एक सेकंड, आसिफ ने हाथ खड़ा किया था पहले से, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, और अगर टाइम बच गया तो फिर हम आपके पास आएंगे। आसिफ आप क्वेश्चन पूछ, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट रखिए। आप कर लेते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, वी विल मेक इट ब्रीफ बट वी
let's answer all the questions. Perfect. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हेलो. जी जी वालेकुम सलाम. आपकी आवाज. हेलो. अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, चूंकि आपने स्पेसिफिकली लीडर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल स्पेशली मैं अपने इलाके की बात करूंगा, मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं. जैसे मैं आज भी बात कर लूंगा तो हमारे यहाँ दरनता, और ये हमारे हेल्थ पे, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. कल जब नेट बंद हो गया था तो मेरे जितने भी एम्प्लॉइज थे वो बैठे थे और मेरी शक्ल देख रहे थे. सुबह जब मैं आया तो सेम कंडीशन थी. तो एक तो ये है कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें मेंटल इश्यूज आ रहे हैं. दूसरी बात ये, जब हमें इशू भी हो मेंटल हेल्थ के, तो हम कैसे अपनी टीम को मैनेज करेंगे उस हेल्थ के साथ. क्या हमें छुट्टी लेनी चाहिए या किसी और को मौका देने चाहिए इस कंडीशन में? और अगर आप किसी को मौका भी नहीं दे सकते हो और छुट्टी भी नहीं ले सकते हो, तो ऐसे हालात में हमें एक टीम को कैसे लीड करना चाहिए जहां पे आपके पास 10-15 लोग हो और उनकी रोजी रोटी भी आपके साथ बंधी हुई हो? सो बड़ा अच्छा सवाल है. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड. हमारे मुल्क में ना दो चीजें बड़ी अंडर आइडेंटिफाइड हैं. एक, हमारे मुल्क में 90% 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है, और दूसरा, हमारे बहुत से लोगों के जो है ना कोई किसी का ना मेंटल हेल्थ इश्यूज है किसी ना किसी उसमें, जो हमें बिल्कुल ये एक स्टिग्मा बन चुके हैं. और ये बिल्कुल इससे निकलना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रेन है वो एक बॉडी पार्ट है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप घुटने का इलाज कराने जाते हैं, कोई मसला होगा तो आप कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, खासतौर पे जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, जिसमें सबसे लीस्ट विजिबिलिटी है, जिसमें एक्सरे करके भी कुछ नहीं निकलता. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मेरा ख्याल है इवन ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा एक सोसाइटी लेवल, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा बन चुका है. और इसके अंदर कि यार ये पागल हो गया है, ये इसको किसी डॉक्टर को दिखाना है. मेरा अपना ख्याल है कि इसको हेड ऑन बिल्कुल चैलेंज वो करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट ये कि लॉट ऑफ टाइम जो लीडर या जो मैनेजर है ना, वो अगर अपनी टीम के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट टूल जो आई लर्न वाज 1-to-1 मीटिंग्स. हर हफ्ते या हर ऑल्टरनेट वीक पे आप अपनी टीम के साथ 1-to-1 मीटिंग करें, विच इज नॉट अ स्टेटस मीटिंग ऑन द प्रोजेक्ट और द टास्क. इट्स जस्ट कनेक्टिंग टू देम वन ऑन वन एंड अंडरस्टैंडिंग कि यार उनकी क्या चल रहा है, इश्यूज क्या है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है. बहुत सी चीज़ें आपको उस वक्त ही समझ आ जाती हैं. और बहुत से जो इश्यूज हैं वो आप प्रोएक्टिवली या प्रिएम्प्टिवली, सॉरी नॉट प्रोएक्टिवली, प्रिएम्प्टिवली डील कर सकते हैं. मेरा ख्याल है कि पहली जो चीज़ है कि हम वेट करते हैं जिसका इशू बिल्कुल ब्लो आउट हो जाए तब हम उसको डील करें. व्हाई नॉट वी डील विद इट एज अ लीडर, क्योंकि टॉपिक लीडरशिप है. As a leader, why don't we connect with people and understand where would they need help and give them help? And a lot of time we can be the at least starting psychiatrist or starting mental health professional जो कि करना. A lot of time mentoring people, you're guiding people. क्या होता है, आप किसी के पास जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कोई बीमार हो जाता है और साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट में मेंटरिंग कर रहा होता है. एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्ट्रक्चर्ड आपको सोचने का तरीका देते हैं. और क्या. तो आप लीडरशिप लेवल के ऊपर जब अपनी टीम से हर वक्त कनेक्ट करेंगे और उनको उनकी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प है. और फिर जब हो जाए तो आई थिंक वो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर निकल के सोसाइटी की चीज़ है कि इट्स ओके. आप जाके अगर हेल्प ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ यूएस यूरोप के अंदर वो ज़रा सा कोई शहर के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कंपनी वाले खुद कहते हैं जाएँ जाके काउंसलिंग लेके आए. तो मेरा अपना ख्याल है कि आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई एम वेरी ग्लैड कि इस पर काम भी हो रहा है और बिल्कुल इसमें, लेकिन पहला लेवल इसका ये कि आप खुद करें एज ए लीडर, कनेक्ट करें और खुद इसको रिवॉल्व करें. और ये बड़ा वाइड स्प्रेड इशू है. ये ऐसा नहीं है कि कहीं किसी इलाके का इशू नहीं है, ये हर इलाके का इशू. जी सबा, you had a question. सबा. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरे स्टार्टअप का नेम जो है वंडर ऑयल है ना, तो खैर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स की मुझे समझ नहीं आई. और दूसरा आपने डिस्कस किया कि मतलब अगर आप 2 मेंबर्स हैं बिजनेस में, तो अगर भाई बहन भी है सपोज एज एग्जांपल, तो उसको आप पहले से ही सॉर्ट आउट कर लें. तो कौन से की पॉइंट्स है जो आप कहना चाहते हैं कि वो पहले से ही डिस्कस कर लेने चाहिए? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है ना सब, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि जितने भी फाउंडर्स होते हैं ना उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है. सो एक आपकी कंपनी है और कंपनी का स्ट्रक्चर है. एक जो शेयर होल्डर्स है ना कंपनी के, उसको कहते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट, फाउंडर्स एग्रीमेंट. वो एक स्टैंडर्ड है. आप किसी उसके पास जाएंगे, उसको बड़ा क्लियर लिखा होता है किसकी कितनी इक्विटी है. कोई छोड़ेगा तो उसके छोड़ने का क्या तरीका है, कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो उसको अंदर आने का क्या तरीका है, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी. एक जो है अगर छोड़ के जा रहा है तो बाकी दो कैसे काम करेंगे. अगर कोई कौन कौन से डिसीजन हैं जो तीनों ने मिलके लेने हैं, कौन कौन से डिसीजन हैं जिनमें मेजॉरिटी को होगा. वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट ये करता है कि सारी की सारी चीजें जो पोटेंशियली आगे आ सकती हैं वो लिस्ट डाउन करके उस पर डिसीजन सब करके वो हो जाता है, तीनों साइन करते हैं. ताकि बाद में मसला क्या है, मसला ये होता है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता ना. मसला ये नहीं कि कोई मसला है, मसला ये है कि आपको पता नहीं कि उसको सॉल्व कैसे करें. तो आप शेयर होल्डर एग्रीमेंट को प्लीज लेके आए. आप SHA उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड है कि यार जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट आपस में साइन करेंगे. ये कंपनी से भी एक लेवल ऊपर होता है. ये जो फाउंडर्स है उनका आपस का एग्रीमेंट है कि हमने आपस में मिलकर कैसे काम करना है. जब लड़ाई हो जाएगी, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको हमने रिजॉल्व कैसे करना. ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसा दो कंपनियों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी होता है ना कि ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे. उसी तरह कंपनी के फाउंडर्स के दरमियान मेरा तो ख्याल है ये मैंडेटरी होना चाहिए SECP लेवल के ऊपर कि हर जो शेयर होल्डर का SECP कंपनी है उसमें शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है वो SECP में उसी तरह सबमिट हो जिस तरह मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबमिट होता है. और अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट एक एफिडेविट हो कि यार हमने ये कर लिया आपस में. अच्छा, दूसरा जो है आपने जो OKRs पे कहा, मेरे ख्याल आपको बहुत सा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, बट इसका बुनियादी जो 1 मिनट का आंसर है वो एक है कि ऑब्जेक्टिव, एक है की रिजल्ट. ऑब्जेक्टिव है कि आपने अचीव क्या करना है, कि मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है बाय June 30th, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है वो आपके की रिजल्ट्स हैं. जब आप किसी भी टीम का या पूरी कंपनी का OKR डिफाइन कर देते हैं तो उसमें हो ये जाता है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है कि हमने एज अ टीम अचीव क्या करना है. कैसे करना है फिर वो क्वेश्चन रह जाता है. फिर उसको एजाइल के जरिए करें, वाटरफॉल के जरिए करें, वो आपकी अपनी मर्जी है. लेकिन क्या अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए रिजल्ट्स क्या क्या हमें चाहिए इंटरमीडिएट, वो OKR आपको बता दें. मेरी सजेशन ये कि आप OKRs की बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर और स्टार्टिंग विकिपीडिया पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. जो एक्चुअल बेस्ट बुक है वो मेजर व्हाट मैटर्स है, जॉन डूअर की. वो अगर आप पढ़ लें तो आई थिंक दैट्स आइडिया. थैंक यू सर, अली, मेरा आपका पॉइंट question क्लियर हो गया. थैंक यू. अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, टाइम भी खत्म हो रहा है. जी सर, जी सर. इमरान साहब, आपने कहा कि जितना भी आपका स्टाफ है या जो मैनेजमेंट है उनके साथ आप वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ जो है 1-to-1 कनेक्ट करें. सो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि मतलब अक्सर ये इश्यू होता है whenever you try to connect 1-to-1 with your crew members, then usually आपके मैनेजमेंट आपको कहती है कि you are the CEO and आपको इनके साथ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि एक जनरल एक स्टीरियोटाइप परसेप्शन चल रहा है. It's good for the management कि वो इस पूरी अथॉरिटी को होल्ड कर लें. CEO should be free for expanding the business, but still CEO as a CEO आपका माइंड जो है मैनेजमेंट के इंटरनल मामलात से भी उस तरह से रिलैक्स नहीं हो सकता जिस तरह से मैनेजमेंट खुद चाहती है कि मैं रिलैक्स हो जाऊं. अली जो मेन 1-to-1 का मैंने कहा था और जो जनरल प्रैक्टिस है ना वो ये होता है कि आप अपने डायरेक्ट रिपोर्ट से 1-to-1 मिलते हैं. सो एज अ CEO आपके जितने लोग एज अ CEO को रिपोर्ट कर रहे हैं आप उनके साथ 1-to-1 रखें. और कई जगहों के ऊपर आप उससे एक लेवल नीचे जाते हैं. फिर आपका लेट्स से हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है तो वो अपने इंजीनियर्स के साथ 1-to-1 रखेगा. या अगर टीम लीड है नीचे तो वो टीम लीड अपनी टीम के साथ रखेगा. तो ये दिस इज लाइक नॉट कि CEO विल डू इट विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. The way it works is you do it with the people that are reporting to you. So you do it with the people that are, one level down, and then they will do it with their people that are one level down. लेकिन startup जब early stage में आप हैं 7-8, then you can essentially flat ही होती है hierarchy, तो you can do that. अगर आप इसको ऊपर पढ़ी तो I think that is something. अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कि इसका स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है.
क्योंकि you also don't want कि वो बिल्कुल ad hoc हो और फिर दोस्ती यारी में कन्वर्ट हो जाए। कई जगहों पे जो स्ट्रक्चर ये होता है कि यार हम व्हाट डू यू फील अबाउट कि बाकी कंपनीज में क्या, कंपनी में जो हो रहा है कैसा होना चाहिए, आपके अपनी जो लर्निंग और गोल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, डू यू थिंक यू आर डूइंग वेल, हमें कहाँ और हेल्प हो सकती है, आपका क्या ख्याल है कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और जो कंपनी कर रही है, आर वी डूइंग दोस थिंग्स राइट और रॉन्ग। तो उसका भी स्ट्रक्चर होता है, इट्स नॉट कि जस्ट बैठ के गपशप लगा रहे हैं, बट वो सिर्फ वो जो क्वेश्चन और फ्रेमवर्क होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट प्रोजेक्ट्स और टास्क्स और अपडेट्स, ये आपकी जनरल ओवरऑल चीजें चल रही हैं उसके अराउंड वो होता है। तो आई थिंक ये वेरी स्केलेबल मॉडल है अगर हर लेवल अपने से एक लेवल डाउन। थैंक यू सर। बॉस जी, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन खत्म करते हैं, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी टाइम से काफी। Great. Thank you very much, Azhar. Thank you very much for taking out time. It was a very interesting discussion और I hope कि हमारे स्टार्टअप्स के बहुत सारे क्वेश्चन जिससे क्लियर हो गए होंगे। और फरहाद, आप कुछ कहना चाह रहे हो? Yes, thank you so much, Athar. Thank you. We would have loved to have you at NIC, but because the COVID situation, हम लोगों ने भी remotely उसको करे सारा. But inshallah, when the situation is better, we'd love to have you, and we'd like you to interact with our startups because obviously there's more than just leadership. They'll have if you could take out time to उनके products पे हम बात कर सकें, इनके services के ऊपर, and if you could mentor them as well. So thank you so much for joining in. I would love to, Farhad. Farhad, thank you very much. आसिम को भी मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, and thanks a lot, most importantly, to all those जिन्होंने बर्दाश्त किया पिछले 1.5 घंटे में, and would love to come and visit NIC inshallah once things get better. Inshallah ji. Thank Inshallah. Thank you so much ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.